my name is Vikas. I am an educator at New Careers Academy, Chandigarh. I will be teaching you mathematics. Today in this particular lecture we will cover quadratic equation. You will see, first we will cover the basics, we will understand the chapter. Then we will cover certain questions. I will teach you some short tricks. बच्चों, हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही नहीं है कि हम बेसिक सीखें किसी भी क्वेश्चन को. हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम एक क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने आपको शॉर्टकट सिखा रखा है. इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आपकी एफिशिएंसी प्लस स्पीड दोनों मैटर करते हैं. अगर मैं आपको ये पेपर घर ले जाके सॉल्व करने को दे दूँ तो आप में से मोस्टली बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे 5-6 घंटे में. बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अंडर प्रेशर हमने 2.5 घंटे में वही क्वेश्चंस वहाँ बैठ के सॉल्व करने हैं. और उसके लिए आपका शॉर्ट ट्रिक्स आप सीखते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. और इस वीडियो में आप देखोगे मैंने आपको बेसिक भी सिखाया हुआ है प्लस शॉर्टकट कैसे लगाने वो भी सिखाया हुआ है. ओके, नाउ zeros denote this, that a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0 and a beta square plus b beta plus c is equal to 0. If we write this equation again, ax square plus bx plus c is equal to 0, and we divide this equation by a, x square plus b by ax plus c by a is equal to 0. Then the important thing here is sum of roots and product of roots. Sum of roots, that is, if this equation has two roots alpha and beta, so it means alpha plus beta will be equal to minus b over a, and we write it as sum of roots. And alpha into beta will be equal to c over a, that is product of roots. If we denote it by s and denote it by p, then can we write this equation in this form? X square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी ओवर ए. एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? सी ओवर ए. हमने क्या किया? सी बाई ए की जगह पे क्या पुट कर दिया? अल्फा इंटू बीटा. और ये माइनस साइन अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बना देगा? इज इक्वल टू बी बाई ए. बी बाई ए की जगह पे क्या पुट कर दिया? माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स. सो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि सपोज आपको कोई भी बोलता है, सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि सपोज वन इक्वेशन हैज दीज टू रूट्स 10 and 3. फाइंड द इक्वेशन. x square minus 13 plus 30 minus 10 plus 3 x plus 30 is equal to 0. Clear? Now can you answer me one question, that alpha plus beta is equal to minus b over a and alpha into beta is c over a. ये आया कैसे? Okay, don't worry, I will tell you. देखो, ax square plus bx plus c is equal to 0. इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं, and we know solutions are x is equal to minus b plus minus under root d divided by 2a. You have done this part. ऐसा होता है where d is discriminant, d is equal to b square minus 4ac. So it means x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2. Now the two values of x are plus divided by 2a, and x is also equal to minus of b minus of under root b square minus 4ac divided by 2a.
Product of roots. First of all, let's do sum of roots. Sum of roots means we will add both the roots. Here both the roots are these. यही ना इसके दो roots. Is it clear to you or not? Anyone any doubt so far? No, sir. Clear. Okay, good. Alpha plus beta will be equal to minus b plus under root b square minus 4ac divided by 2a. Now, can we take b minus as common? So it will become this b plus under root of b square minus 4ac. क्लियर है ना ये पार्ट सबको? किसी को कुछ भी इसमें डाउट हो? माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस कॉमन यहां से, माइनस ऑफ b माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. 2a is LCM. माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b minus cancel, so it will give us minus 2b over 2a. So alpha plus beta is equal to minus b by a. In the same way, if we multiply alpha into beta, multiplication will give us minus of b plus under root b square minus 4ac divided by 2a into under root b square minus 4ac minus b. इसको मैंने ऐसे लिख लिया, माइनस b को बाद में, डिवाइडेड बाय 2a. सो यू कैन सी माइनस तो बाहर आ ही गया, माइनस 1 तो कॉमन ही है, मल्टीप्लाई होएगा उसके आगे माइनस तो आएगा ही आएगा. ये देखो a प्लस b a माइनस b, सो इट विल गिव अस a स्क्वायर. इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर. माइनस 1 को माइनस 4ac से मल्टीप्लाई करेंगे, 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c ओवर a. Anyone any doubt in this? Sir, I did not get. Sorry? Sir, I did not get this alpha plus beta. अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा? Alpha plus beta. अल्फा प्लस बीटा, दिस वन? Yeah, alpha into beta. Alpha into beta, okay. Now you see here, x was equal to under root of b square minus 4ac minus b. b minus b square minus 4ac under root. So we have taken minus common. Minus common लिया, अंदर क्या बना? This thing b plus under root of b square minus 4ac. Okay. Minus. We are writing this one first. See. Minus common. b plus under root of b square minus 4ac divided by 2a into, I have written this one, under root of b square minus 4ac minus b. Clear? Divided by 2a. Now we have one formula, a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. This is our a. A is positive always. B is negative and positive. A is positive. This is R. Minus B plus B. So square of this, under root will not be there now. B square minus 4ac minus B square. B square cancel. Minus 1 into minus 4ac plus 4ac. 4 cancel.
1a will get cancelled with 1a, it will give us c by a. Clear now? This is how we have alpha plus beta and alpha minus beta. Okay, moving further. Now next topic is nature of roots. Okay, nature of roots का meaning क्या है? Okay, suppose these roots we are finding alpha and beta. What is their nature? Are these roots real or imaginary? सर रियल तो तब होंगे ना जब सर डिस्टिंक्ट डी 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 पॉजिटिव है तो सर रियल होंगे, कि नेगेटिव है तो इमेजिनरी। ओके, अभी आएंगे हम उसके ऊपर, कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे वो चीज आ रही है। देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय। Now understand one thing, minus b over 2a will always be a real part. Real number क्या होते हैं? सारे नंबर्स एक्सेप्ट आयोटा वाले नंबर छोड़ के सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो ये तो हमेशा रियल रहेगा ही रहेगा, नो मैटर व्हाट। नाउ दिस पार्ट, अब ये पार्ट क्या हो सकता है? ये अंडर रूट में भी रह सकता है, अंडर रूट के बिना भी आ सकता है, आयोटा के साथ भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है वैल्यू क्या है। तो अगर मैं लिखूं कि इफ ए बी सी आर रैशनल नंबर्स, rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of a by b, like 2 is a rational number, 2 by 1, like that. If a b c are rational numbers and number 1 point, if b square minus 4ac is greater than 0, if b, सर रियल it will be a real number. देखो b square minus 4ac will give us a real value. अगर देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू का अंडर रूट हटने के बाद क्या आएगा? आएगा तो रियल नंबर ही ना, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरैशनल हो। क्लियर और नॉट? सर एक बार ये फिर से बता दो। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और अंडर रूट में मैं कुछ भी लिखता हूँ, पॉजिटिव सुपर पॉजिटिव 3 लिख दिया, पॉजिटिव 1 लिख दिया, आउटकम क्या होगा इसका? एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। द आउटकम विल आल्सो बी अ पॉजिटिव वैल्यू, वेदर इट इज अ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, it will be a positive value, right? And now there is a value, so there will be two values, one will be with plus and one will be with minus, क्योंकि अगर मैं सपोज कुछ भी इसके आउटकम लिखता हूँ, ये नंबर तो फिक्स्ड है, आगे इसका क्या आएगा, एक बार प्लस लगाएंगे एक बार माइनस लगाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं एक चीज और लिखूं आपके साथ, b square minus 4ac is greater than 0 and is a perfect square, like 1 4 9 etc.
So then rational roots will be, sir. It will give us rational roots because अब अंडर रूट 1 में से अगर बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, बाहर क्या आएगा, 1 आएगा पूरा। अंडर रूट 4 में से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अंडर रूट 9 में से 3 आएगा। सिमिलरली 16 में से 4 and 25 में से 5. So it will give us rational roots. So can I write it like this? The roots will be real, rational and distinct. Distinct means different. Roots different होंगे, same नहीं होंगे, equal नहीं होंगे, 1,1 नहीं होंगे, 1,2, 3. सर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ फिर? अभी आते हैं उस पर भी। सेकेंड, if b square minus 4ac greater than 0 and is not a perfect square, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक नंबर क्या आ रहा है, वी हैव 2, 3, 5, 6, 7 so on. तो देखो अगर 2 है तो 2 का बाहर क्या आएगा, अंडर रूट 2. सो इट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो वैल्यू किस में रहेगी हमारी, आवर वैल्यू विल ऑलवेज बी इन अंडर रूट्स. लाइक यू मस्ट हैव सीन रूट्स लाइक दिस, 2 plus अंडर रूट 3. Sir, p plus q under root q form. p plus अंडर रूट क्यू इसी फॉर्म में आएगा हमेशा. So we can say that now the nature of roots is, roots are real. Yes, of course, it will give us a real value. Value will be real. Under root 3 exist करता है ना. Under root 3 you use. Under root 3 आप use करते हो. So value will be real, irrational, and distinct. Again, अलग अलग होंगे. कैसे होंगे वो चीज मैं आपको बता देता हूं. अगर आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि suppose one root is given as 2 plus under root 3, then find the other root. Other root will 2 always minus minus under root. 3. So ये हमेशा पेयर में आएंगे. They will always be in pair. p plus minus under root q हमेशा ऐसे ही होएगा. If you want to note it down. फिर उसके बाद हम अगला. सर हरदाद सर को बोल के कल के भी वो भिजवा दीजिएगा सर, कल के नोट्स नहीं मिले. बोल दे. सर डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट. डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट. Yes, different. Excuse me, sir. 1 second, Vijayant. हाँ विजयंत.
सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे क्या कहते हैं, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अगर एक जैसे 2 + √3 आया और दूसरा 2 - √3 आएगा, तो यस, सर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होते तो उसके अंदर क्या होता? अगर मान लो कि एक 2 आता तो दूसरा -2। नहीं ऐसे बन जाता ना, 2 प्लस √4 डिवाइडेड बाय लेट्स से कि 2 है, तो दूसरा क्या बनेगा 2 - √4 डिवाइडेड बाय 2, so it will give us 2 + 2 divided by 2, 1 will give us 2 - 2 divided by 2. Got my point? यस सर। सर अलग अलग होंगे फिर उसके हाँ, अंदर? they will be different. Okay, next part now. If b square minus 4ac is equal to 0, अगर ये 0 हो जाता है तो now you see here one thing, see here this part, this will become 0, ऊपर वाला 0 ही हो गया, so 0 हो गया तो x की वैल्यू किसकी इक्वल बचेगी? x will be equal to -b/2a, आगे वाला पार्ट तो 0 ही हो गया, so x will be equal to -b/2a, so both the roots will have same value. अब हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि x की वैल्यू एक ही एग्जिस्ट करेगी, इट विल हैव टू वैल्यूज, इक्वल रूट्स हो जाएंगे, -b/2 है। इक्वल रूट्स हो जाएंगे, सो हम क्या बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल, रियल रहेंगे ऑफ कोर्स बिकॉज दिस पार्ट इज रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जैसे सपोज अगर मैं आपको देता हूं एग्जांपल एक, x² - 4x + 4, इसके देखो अब b की जगह पे क्या है 4 -4² -4 into a is 1 c is 4, और वैसे भी अगर आप इसे सॉल्व करके देखते हो तो क्या आएगा, it is an equation of x - 2 whole square, so x has two values, 2, got my point? Anyone any doubt in this? सेकंड वाले को दोबारा बताओ। कौन सा सेकंड सेकंड कौन सा है? सर, इफ b² - 4ac is greater than 0। ग्रेटर देन 0 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि अगर ये स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब 2 3 5 6, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस फॉर्म में बनेगा, एक 2 + √3 आएगा तो दूसरा क्या आएगा 2 - √3, अंडर रूट वाले सारे के सारे किस में होते हैं, इररेशनल होते हैं ना, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज लास्ट पार्ट, if b² - 4ac is negative less than 0, सर दोनों कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे सर। now here you can see, अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि √(-3) की वैल्यू क्या होती है, इट इज √3 3 iota, because √(-1) is always equal to iota. Got my point? So here the roots are complex or imaginary and distinct. Again they will be different in the sense, if one root is a plus iota b, then the other root will be equal to a minus iota b. Again they exist in pairs, पेयर होएगा,
a प्लस आयोटा b आएगा तो दूसरा आएगा a माइनस आयोटा b. It is always true. Clear? Anyone, any doubt in this? Now, one last point of this chapter is, okay, let's say if I say reciprocal roots. Reciprocal roots means if one root is alpha, then the other root is 1 over alpha. If one root is alpha, then the other root is 1 over alpha. So if we try to convert this into this equation, sum of roots into x plus product of roots, then product of roots is, so x square minus alpha plus 1 over alpha into x plus 1 is equal to 0. Or if I solve it again, if I solve it again, it will be alpha x square minus alpha square plus 1 into x plus alpha is equal to 0. So one thing you notice here is, if I compare it with this equation, the value of a is alpha, the value of c is also alpha. If I compare it with this equation, value of a is 1, value of c is also 1. It means that for reciprocal roots, a is always equal to c. A is always equal to c. Anyone, any doubt in this? Very सर एक simple. बार रिपीट कर दो. Repeats. Okay. For reciprocal roots mean, if one root is alpha, then the other root will be 1 over alpha. It's reciprocal number. If we try to convert it into this form, that is x square minus sum of roots plus product of roots. X square minus alpha plus 1 over alpha into x plus 1, we get this equation. If we solve this equation further, then we get alpha x square minus alpha square plus 1x plus alpha is equal to 0. और अगर हम इसे कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड इसकी जनरल इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा? देखो, a अल्फा के इक्वल है, c भी किसके इक्वल है? अल्फा के इक्वल है. a किसके इक्वल है? 1. c भी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल. तो हमें क्या इससे पता क्या चल रहा है कि a और c की वैल्यू क्या रहेगी? इक्वल रहेगी व्हेन द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. रेसिप्रोकल रूट्स के लिए a इज इक्वल टू c होगा. यस, एनी डाउट? नोट इट डाउन. कर लिया होगा नोट आपने? ये अल्फा Yes, sir. सर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 को b कैसे लिखा? अरे कंपेयर किया हुआ हमने, सिर्फ कंपेयर करना है. ओके सर. कंपेयर करना है, लिखना नहीं है, कंपेयर करना है. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, इसको कंपेयर करो इससे. ओके सर, आ गया समझ. समझ आ गया ना? इससे कंपेयर करना है. दैट्स इट. नोट हो गया है पूरा? No, sir. करो करो, नोट करो फटाफट. सर क्यूबिक भी इसमें कराओगे आप? सॉरी, सर क्यूबिक भी कराओगे इसमें? नहीं, क्यूबिक है ही नहीं हमारे सिलेबस में. एक दो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस के अंदर ही कवर हो जाएंगे. मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा उसके साथ.
Okay. Question number 1. सर ए सर -3/7 Done? Yes, sir. Now understand one thing. I will help you in this question. See here, alpha plus beta is equal to -3/4 -3/4. Alpha into beta is equal to 7/4. 7/4 हमें निकालना क्या है? 1/a plus 1/beta beta, which is equal to a beta a plus beta. वैल्यू पुट करेंगे. -3/4 इंटू 7/4. 4 से 4 कैंसिल हो गया. कितना आ गया? -3/7. क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर डी. Yes sir, D 25/12 Yes, sir. Yes, sir. D 25. वेरी सिंपल. इक्वल रूट्स. B square minus 4 is equal to For equal roots, b square minus 4ac is equal to 0. That's it. Now compare this equation to this equation. We have a is equal to 3, b is equal to -5, c is equal to q. So -5 square is equal to 4 into 3 into q. 25 is equal to 12q. So q is equal to 25/12. Clear? Next question. Question number 3.
सर एक तो 1/बीटा आ रहा है और फर्स्ट नहीं पता। नन ऑफ दीज सर। वेरी सिंपल। अल्फा नहीं आया सर, बीटा तो आ गया। ये देखो ना, हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, इसके दो तरीके हैं करने के, मैं दोनों बताता हूँ। माइनस बी ओवर ए और अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी ओवर ए। इस इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट्स हैं वो क्या है, माइनस बी ओवर सी, यही है ना। तो देखो यहां से आप बना कैसे सकते हो माइनस बी ओवर सी। एक तरीका क्या है कि मैं इसको ऐसे कर दूं, बताओ आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा यस सर। सर। आएगा। तो इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, 1/बीटा प्लस 1/अल्फा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। यस सर। गॉट माय पॉइंट? किसी को ये सर चीज यस। नहीं है ये ये? लास्ट वाला फिर से बताना पॉइंट। इसके बाद क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा के बाद। Done. Now you see 1/alpha and 1/beta. This is sum of roots. Sum of roots. So it means roots are 1/alpha and 1/beta. Any doubt in this? सर ये लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया सर, वो सम ऑफ रूट्स वाला। क्या पार्ट समझ नहीं आया इसमें? सर वो 1/बीटा प्लस 1/अल्फा को सम ऑफ रूट्स कैसे लिया सर हमने? तो बताओ 1/alpha प्लस 1/beta इज इक्वल टू माइनस बी ओवर सी है इसमें। तो इसमें बताओ सम ऑफ रूट्स क्या है? सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है? सर माइनस b/c। ये भी माइनस बी बाई सी के इक्वल है, ये भी माइनस बी बाई सी के इक्वल है। इसका मतलब रूट्स क्या है इसके, 1/alpha एंड 1/बीटा। क्लियर और नॉट? यस सर। ये सिद्धांत। यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। ये स्मॉल ए ही है, सॉरी ये
सर डी है क्या इसका? नो, this is alpha. Okay, ये अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा एंड बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा है। सर करवा दो। ओके, यहाँ करेंगे हम ये क्वेश्चन थोड़ा नीचे। What is given to you is any equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has two roots alpha and beta. We have to find an equation whose roots are alpha plus 1 over beta and beta plus 1 over alpha. Very simple. Now see, alpha plus beta here is minus b over a and alpha into beta is c over. It is given. The equation which has this roots will be like this: x square minus sum of roots anyone any doubt in this? Simple है ये तो, यही करना ना, sum of roots product of roots, वही सेम चीज, x square minus sum of roots plus product of roots is equal to 0, वही चीज लगाई है। देखो इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, देखो मैं इस अल्फा प्लस बीटा को एक साथ लिख सकता हूं ऐसे, प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा को भी लिख सकता हूं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा को 1 ओवर अल्फा के साथ करेंगे कितना आएगा 1, 1 प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। देखो इस पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे, दिस वन, इसकी जगह पे हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। किसी को भी ये चीज क्लियर ना हुई, आप में से कोई भी क्लियर है सबको? यस, नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस पी ओवर ए, प्लस सर वहां पर एक्स रहेगा ना ऊपर, वहां पे, यहाँ पे एक्स रहेगा, प्लस माइनस बी ओवर ए डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज सी बाय ए प्लस 2 प्लस again this will be a by c. Anyone any doubt so far? Okay, now next, x square minus
ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए प्लस सॉरी माइनस बी ओवर सी एक्स प्लस सी. What is the LCM? AC. C square plus 2AC plus A square is equal to 0. Again here LCM is AC, x square minus minus common plus B is also common. Here it is A plus C divided by AC x plus C plus A whole square divided by AC is equal to 0. Anyone any doubts so far? किसी को कोई भी लाइन इसमें क्लियर ना हुई हो? C square plus A square plus 2A into C plus A whole square. माइनस कॉमन ले लिया, प्लस बन गया. B थे दो, दोनों में से एक कॉमन ले लिया, बाहर B आ गया. अब एलसीएम लेंगे फिर से, क्या आएगा? AC प्लस B A प्लस C into X plus C plus A square is equal to 0. दिस इज योर आंसर. देखो इसमें मैच करो. ए सी एक्स स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर, ऑप्शन ए. सर एक बार सॉल्यूशन दिखाना उसका. सॉल्यूशन मैं आपको एक और भी कराऊंगा. जो मेथड आपको इजी लगे वो रख लेना आप. सर थोड़ा नीचे कर दो. ऐसे नोट मत करो आप, इसे खुद करना. देखना होता है, नोट नहीं करना होता कभी भी. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एक और तरीका जो आप लगा सकते हो. What is given to us is ax square plus bx plus c is equal to 0. It has two roots alpha and beta, and we have to find an equation whose roots are. This was our question. Now let's assume that an equation has two roots where alpha is equal to 1 and beta is equal to. हमने दो रूट्स अपनी तरफ से मान लिए, कोई भी दो रूट, 1 2 मान लिया. मैंने 1 2 इसीलिए माना, मैंने एक वैल्यू 1 इसीलिए रखी है बिकॉज क्या होएगा यहाँ पे, देखो अल्फा 1 हो गया, 1 ओवर अल्फा भी क्या होएगा? 1 होएगा. तो एक हमारा रूट क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा. इट विल बी मच इजियर फॉर अस टू कैलकुलेट. सपोज मैं अगर 2 और 3 लेता तो यहाँ पे क्या हो जाता? 2 प्लस 1 ओवर 3, 3 प्लस 1 ओवर 2. तो दोनों को कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम आती है. और अगर आप इसकी जगह पे अगर एक रूट और भी लेते हो, जैसे अगर सपोज मैं कंसीडर करता हूँ, if I take alpha is equal to 1 and beta is equal to -1, it will be much easier for us. Let's take this, alpha is equal to 1 and beta is equal to -2. So equation will become x square minus sum of roots, that is 1 minus 1 into x, plus product of root 1 into -1 is equal to 0. So it is x square plus minus 1 is equal to 0. यही आ गया हमारे पास. अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो क्या बन रहा है? a is equal to 1 आ रहा है, b is equal to 0 आ रहा है, c is equal to क्या आ रहा है? -1. Keep this value now with you. Okay, put here. We know alpha is equal to 1 plus beta is equal to -1. And
here again beta is equal to -1, alpha is equal to 1. It is 0, it is 0. We have to find an equation whose roots are 0. तो कौन सी इक्वेशन होगी ऐसी? टेल मी, कोई इक्वेशन जिसके दोनों रूट ही 0 है. x is equal to 0 या x square is equal to 0. Now note it down. x is a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to -1 है. यहाँ पे देखोगे वैल्यू क्या थी हमारे पास? a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to -1. Substitute it in first option. a is equal to 1, c is equal to -1. तो क्या बन गया? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. b आ गया यहाँ पे, क्या बन गया? 0. यहाँ पे देखो 1 - 1 स्क्वायर 0. सो इक्वेशन क्या आ गई? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यही आंसर. दिस इज अ बिट ट्रिकी, बट अगर आपको एक बार ये क्लियर हो जाएगा ना. पिछले वाला ज्यादा इजी था. हैं? तो पिछले वाला ज्यादा इजी था. इजी तो ये है, इजी तो ये देखो इतना सा ही क्वेश्चन है, हमने इतनी दूर में इसे सॉल्व कर दिया. अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ क्वेश्चन. आप ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इसके बाद यू विल. फिफ्थ. ओके, ये दो इक्वेशंस गिवन है. एक चीज और भी गिवन है कि इन दोनों में एक रूट कॉमन है. वन रूट कॉमन. एंड इसके दोनों के दोनों रूट क्या है? इक्वल है. इट हैज इक्वल रूट्स. दिस इज गिवन टू अस. नाउ let's consider that this equation has two roots 1, 2. इसके रूट्स हमने अपनी तरफ से मान लिए कि 1, 2 टू रूट्स हैं. तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बनेगी ये. तो इसमें देखो p की वैल्यू क्या है? 3, क्योंकि -p ऑलरेडी गिवन है, -3 है. q की वैल्यू क्या है? 2. अब हम मान लेते हैं कि जो एक रूट कॉमन है वो 1 है. 1 है वो कॉमन है दोनों में, और इसके दोनों इक्वल रूट्स है. इसका मतलब इसके दोनों रूट्स क्या है? 1, 1. 2, 2 भी ले सकते हो आप, whatever you wish to. एक रूट कॉमन है, वही रूट दूसरा है इसका. तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स a here is equal to 2 and b here is equal to 1. ये बन गया. अब इसमें पुट करो, देखो a क्यूब a2 इंटू क्यूब 2 इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? 2 इंटू बी प्लस पी. नहीं बना. सेकेंड ऑप्शन a इंटू क्यूब 2 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू b प्लस p. डन. लेकिन यहां पे आपने एक चीज और नहीं देखी. ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ये भी तो बन रहा है.
दो आंसर तो हो नहीं सकते। तो अगर आपके साथ कभी भी आप वैल्यू लेट करते हो और ऐसी चीज हो जाए जिसमें कि दो आंसर हैं, तो आपने हमेशा क्या करना है, वैल्यू चेंज कर दो इसकी, कोई भी और वैल्यू कंसिडर कर लो। जैसे यहाँ पे क्या कर लिया, 2,2 ले लिया, 2,2 लेंगे, ये क्या बन जाएगा 4, ये क्या बन जाएगा 4। अब चेक करो, ए क्यू 4 इंटू 2 8, किसके इक्वल आना चाहिए था, बी प्लस पी के। बी कितना है 4 प्लस 2, नहीं आया, इसका मतलब ये तो आंसर है ही नहीं। सेकेंड आंसर हमारा ये बना था, ये आंसर आएगा, ये चेक भी कर सकते हो आप। ए इंटू पी 12 इज इक्वल टू 12। आप इसको कोई भी और मेथड लगाओ, बहुत लंबा क्वेश्चन होगा ये। अगर आपको एक बार वैल्यू पुट करनी आ जाएगी, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। यही करो 14th क्वेश्चन। Just got my point. It is given that alpha minus beta is equal to -1. So let's say that it has two roots 2 and 1, which is equal to 1. It satisfies, तो इक्वेशन बनी, इक्वेशन से कंपेयर किया, a is equal to 1 आ गया, b is equal to -3 आ गया, c is equal to 2 आ गया। सारे ऑप्शंस में वैल्यू पुट करके देखो, ओनली वन ऑप्शन satisfies the value, hence it is the answer. Yes, any doubt? सर ये 1,2 वाला रूट क्या हर एक क्वेश्चन में काम करता है? नहीं, जरूरी नहीं है, क्वेश्चन कैसा गिवन है उस पर डिपेंड करता है ना। आप 1,0 ले लो, यहाँ पे आप 1,0 ले सकते हो। 1,0 लोगे तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, -x + 0 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 0। देखो पुट करके, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, a मीन्स अगेन 1 इंटू 1 + 0, विच इज इक्वल, यस। सर ये समझ नहीं आया सर, ये पॉइंट कैसे पुट किए, 2 और 1 कैसे पुट किए? 2 and 1 कैसे पुट किए, यस गिवन है ना, इसने क्या गिवन है कि द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। इसने बोला जो डिफरेंस है उन दोनों के बीच का वो 1 है। हमने कोई भी दो रूट ऐसे लेट कर लिए जिसमें उनका डिफरेंस 1 है। वो रूट्स कौन से थे, 2 and 1। 3 and 2 लेट कर सकते हो आप, 1,0 कर सकते हो जो मैंने अभी करके दिखाया, 4,5, एनी वैल्यू दैट यू विश टू टेक। गॉट माय पॉइंट? Yes, Herman? यस सर। Okay. Question number 10. यस सर। You see two consecutive integers. You can let any two consecutive integers. Let's say 1,2. Again, the equation will be x square minus 3x plus 2 is equal to 0. Here b is equal to 3, c is equal to 2. b square minus 4ac, 9 minus 8. One answer. अब कोई भी दूसरे रूट लेट कर लो, 2,3 लेट कर लो, क्या बनेगी इक्वेशन, 5 square minus 4 into 6, again 1। 4,5 लेट करके देख सकते हो आप, x square minus 9x plus 20, 9 square 81 minus 4 into 20। Yes, anyone, any doubt in this?
Okay. See question number 6. D sir, D. D Sir, option. D. D option. If 1 is D. 2 plus 5 iota, second should be 2 minus 5 iota. ये एनडीए में भी आया हुआ क्वेश्चन. Yes sir, previous year में. नाउ यू इमेजिन, इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं. बस अभी देखो आज जो हमने मेथड किया, आई नो इट इज नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड इन वन डे, बट विद प्रैक्टिस, जैसे अभी आपने 2 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन करते आपको क्या हो गया, क्या कॉन्फिडेंस आने लग गया ना. सो इन द सेम वे इफ यू स्टार्ट अप्लाइंग इट, डरो मत इससे, आप कंजर्व्ड मत रहो कि नहीं मैं नई चीज नहीं करके देखूं, मैं तो वही सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट वही वैसे वाला लगा. देखो ये उसी से तो बना हुआ है, ऐसा तो है नहीं ना कि कहीं बाहर से आ गया, उसी से ही आया हुआ है. सो ट्राई टू अप्लाई इट, solve 5-6 questions, you will be okay with it. Clear? Anyone any doubt? बाकी questions हम कल करेंगे. किसी का कोई डाउट है पूछो. सर अब तो मैथ्स आसान लगने लग रहा है थोड़ा थोड़ा. चलो सर वो थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 5 सर एक बार वापस करा दो. क्वेश्चन नंबर 5 वापस कराऊं? यस सर. ओके.